Welcome back student, a brand new lecture of computer fundamental. In this lecture, we will discuss the various computer network devices. Network devices. For creating a network, we need certain basic devices. This section details some of these basic devices which are used to form a network, like network interface card, hub, bridges, repeater, router are the devices that let you connect one or more computer to other computer, network devices or other network. Each has two or more connector called port into which you plug into the card cable to make the connection. Let's discuss each of these communication device in detail. The first one is an IC card, or we can say that network interface card. A network interface card provides a physical connection between network and the computer. Most NIC cards are internal, the, the card fitting into the expansion slot inside the computer. Network card are the major factor in determining the speed and performance of the network. It is a good idea to use the fastest network card available for fast transfer of data. The most common network card or network interface card today is Ethernet card. Ethernet card that contain connection for twisted pair cable have a RJ45 connector. The Ethernet card is sometimes also called as a network interface card. Each for the Ethernet card is identified by the unique number called media access number. In other words, we call it MAC address. Your mobile number on which use the internet generally has a MAC address. बेसिकली होता क्या है ना, अगर मुझे अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना है या मुझे कंप्यूटर पे नेटवर्क एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे जैसे हमने लाइक पीछे पढ़ा था, हमने ट्विस्टर पेयर केबल्स पढ़ी थी, उसके अंदर हमने केबल्स पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए मैं ट्विस्टर पेयर केबल यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो वही केबल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। उस केबल के ऊपर क्या होता है, RJ45 कनेक्टर हम लगा देते हैं, और जो एक कार्ड होता है हमारा, जो इंटरनल कार्ड है बेसिकली, वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है उस पर लगा होता है, और उसके साथ हम एक केबल अटैच कर देते हैं। सेम केबल जो है उसका एक एक एंड जो है हम अपने कंप्यूटर में, दूसरा एंड दूसरे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और उससे उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है। अब जैसे जब नेटवर्किंग हो गई, तो जो मेरा एथरनेट कार्ड होता है उसे एक एड्रेस मिला होता है, बेसिकली वो मेरे हार्डवेयर का एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। वो है मेरे हार्डवेयर का एड्रेस। लेकिन जब मेरे दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उन दोनों कंप्यूटर को एक एड्रेस मिल जाता है, अलग अलग एक यूनिक एड्रेस, जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। नाउ here in this figure we have two cards. The first is wide network card and the second is wireless network interface card. लाइक हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ इस पिक्चर में दो कार्ड हैं। एक है हमारे पास जो नेटवर्क कार्ड है वाइड, यानी वाइड बोल सकते हैं, जो मेरे सिस्टम के अंदर स्लॉट में लगा होता है। दूसरा मेरा वायरलेस, ये वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो होता है, जिसकी मुझे बेसिकली जो होता है किसी तार या किसी के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ होती है जिसके साथ मेरी कोई तार अटैच नहीं होती है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली मेरे पास। बेसिकली होते क्या है, दोनों के दोनों लगेंगे किस पे, मेरे एक्सपेंशन स्लॉट पे ही लगेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वन है उसमें मुझे इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस करने के लिए मुझे एक केबल चाहिए होगी जो जिसके ऊपर RJ45 कनेक्टर लगा होगा। लेकिन जो मेरा नीचे वायरलेस वाला कार्ड है, इसके ऊपर मुझे किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं लगी होगी। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वाईफाई के साथ उस चीज़ को कनेक्ट कर देगा। So our next device is hub. A hub is a device that connects a number of computers together to make a LAN. LAN means local area network. A typical use of hub is at a center of a star network or star topology. A hub has a cable plugged into from each computer. A hub is a dump device. When a computer requests for some information from the network, it first sends the request to the hub through cable. Hub will broadcast the request to the entire network. All the devices will check whether the request belongs to them or not. If not, then a request will be dropped. This means that hub-based network is not very secure and can listen. Everyone can listen in to communication. The process used by the hub consume more bandwidth and less amount of communication. Nowadays, usage of hub is absolute and it is replaced by one more advanced devices that we call switches or repeater. Basically hub क्या, बेसिकली
जब हमने लाइक पिछली क्लास में पढ़ा था ना स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था, मेरे पास एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसके साथ हम क्या करते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम पहले क्या करते थे, वो सेंट्रल कंट्रोलर था मेरे पास, वो मेरा होता था हब। उस हब के साथ हम क्या कर देते, जैसे मेरे नेटवर्क कार्ड के पीछे एक केबल लगाने की जगह होती थी, इस तरह की जगहें होती हैं इसमें बनी हुई। तो वहाँ पे मैं एक साइड से केबल कंप्यूटर में और एक साइड से केबल अपने हब में लगा देता था। अब देखिए, जब भी डेटा आएगा हब के पास, सेंट्रल कंट्रोलर के पास। अब हब क्या करता था कि जैसे डेटा रिक्वेस्ट आए उसके पास कोई भी, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे नेटवर्क पे मेरे जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा कि किससे ये रिक्वेस्ट आई हो, किससे सेंडर ने डेटा जो है रिसीव करना है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखो अगर ए कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आई है बी से, तो डायरेक्टली होना ये चाहिए कि कंप्यूटर ए जो है रिक्वेस्ट जानी चाहिए हब के पास, और हब डायरेक्टली कैसे करे, बी के पास भेजे और उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अगर ए की रिक्वेस्ट आएगी हब के पास, हब क्या करेगा, अगर बी सी डी ई एफ जी काफ़ी कंप्यूटर अटैच है, वो सभी के पास भेज देगा उस रिक्वेस्ट को कि किसकी ये रिक्वेस्ट है। तो इसकी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए अगर सभी का डेटा, एक का डेटा सभी के पास जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन चैनल मेरे पास सिक्योर ही नहीं है। तो आज के टाइम पे हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। इसको जो रिप्लेस किया है बेसिकली, मेरे पास राउटर्स आ गए मेरे पास बहुत अच्छे, या मेरे पास स्विचेज बहुत अच्छे आ गए हैं। अब मेरे पास आते हैं दो टाइप, देर आर टू टाइप्स ऑफ हब। द फर्स्ट वन इज एक्टिव हब एंड सेकंड वन इज पैसिव हब। द एक्टिव हब, दोज आर hub that are able to clean, rise and distribute the signal together with the network with their power supply. It is both a repeater and the cable hub. The total distance between nodes can be increased. And the second one is passive hub. These are the hubs that collect cable from active network node and electricity. These hubs relay signal to grid without being clean or improved, nor they can be distance between. बेसिकली होता क्या था, जो मेरे एक्टिव हब थे ना, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करता है। जो भी सिग्नल्स आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, उन सभी को क्लीन करके आराम से नॉइस फ्री करके आगे ट्रांसफ़र करता रहता है। लेकिन जो मेरा पैसिव हब है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करता है अपने आप में। जैसे उसके पास से चीज़ आ रही है, वैसे उस सिग्नल को क्या कर रहा है, आगे वो रिलाई करे जा रहा है, डिस्प्ले करे जा रहा है, भेजता जा रहा है। द नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस इज स्विच. Switch have smarter job than hub in general. A switch improves the capacity of network. A switch like hub is a device that connects a number of computers together to make a LAN. The typical use of switch is at the center of the star network. The switch has a cable plug into it for each computer. A switch is a more intelligent device than a hub. If it receives a message, it checks who it is addressed to and only send it to the specific computer. Because of this, network that use switch are more secure than all those network that use the hub. But there is a little bit problem. The hub is less expensive, but the switch is little bit more expensive than hub. Because switch send data directly to correct device, the amount of unnecessary data traveled around the network is reduced and whole network work faster. बेसिकली होता क्या था, हब और स्विच इकट्ठे ही काम करते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, हब के पास क्या होता है, रिक्वेस्ट आती थी, वो सारे के सारे नेटवर्क पे भेज देता था उस रिक्वेस्ट को। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। स्विच के पास जैसे रिक्वेस्ट आती है, वो एड्रेस चेक करता है किससे रिक्वेस्ट आई है और किस एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। तो वो क्या करता है, जिस एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है उसी एड्रेस पर क्या करता था, वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट जो भेज देता था। तो फ़ायदा क्या हुआ इससे, जो मेरे अननेसेसरी डेटा यूज़ हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैं सारे के सारे नेटवर्क पे क्या कर रहा हूँ, डेटा को ट्रैवल नहीं करवा रहा हूँ। मैं किस पे डाटा को ट्रैवल करवा रहा हूँ, जिसकी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई हुई है। सो हेयर इन दिस डायग्राम बेसिकली क्या देखिए, 1 2 3 4 क्लाइंट है मेरे पास, एक सर्वर है मेरे पास, एक प्रिंटर है और एक सेंट्रल डिवाइस है जिसे क्या बोल रहे हैं हम, हब या स्विच। अब देखिए इस केस में होता क्या है, अब जो मेरे पास जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी प्रिंटर की, या मैं बोल देता हूँ सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट को कि भाई ये काम करना है, कि आप प्रिंट निकालना है या कोई भी, तो वो हब क्या करता था, हर डिवाइस के पास जाएगा कि इससे रिक्वेस्ट मांगी है, इससे मांगी है, इससे मांगी है, इससे मांगी है। फिर जिसके पास आ जाती थी, जिसके लिए रिक्वेस्ट की थी वो उसे एक्सेप्ट करता, बाकी उसे क्या करते थे, ड्रॉप करते थे। लेकिन दूसरे केस में क्या है हमारे पास, स्विच के केस में क्या है, जैसे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, कोई डेटा असेस करना है सर्वर से, या मैं बोल देता हूँ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी दूसरे क्लाइंट से डेटा असेस करना है,
या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर से डेटा असेस करना है, क्लाइंट से डाटा असेस किसी से भी असेस करना है, तो वो क्या करेगा, हब क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा। बेसिकली अब हब ने क्या करना था, वो तो सभी के पास भेज देगा ना कि भाई जिससे डेटा मांगा हुआ है वो दे दो, बाकी ड्रॉप कर दो। लेकिन स्विच क्या करेगा, जिससे डेटा मांगा हुआ है वो उसी को रिक्वेस्ट करेगा, उसी के एड्रेस पे उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, भेजेगा, और उसे डेटा जो है मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज मॉडम। A modem is an asynchronous for modulator and demodulator. The meaning of the word modulator is to change, and the meaning of the word demodulator is restore the original condition. A modem is a communication device that converts analog signal for a transmission over a telephone line and convert these analog signal back to binary form for receiving end. At the receiving end, digital signals are transmitted through analog phone line using modem. The modem convert the digital signal into analog signal and analog signal into digital signals. In most of cases, digital data is transmitted via RS-232 standard interface to or from serial line modem. Most of the cable operators use the modem as a final terminal to locate and remember their home and personal client, and many phone companies like provide DSL। बेसिकली मॉडम का काम क्या है ना, बेसिकली मॉडम की फुल फॉर्म है हमारे पास मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है, मेरे पास एनालॉग सिग्नल को क्या करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना है, और डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में। बेसिकली देखिए, जब मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ तो वो क्या होता है मेरे पास, जब भी मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ तो मैं डिजिटल फॉर्म में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब वो डेटा जा रहा होता है तो वो एनालॉग फॉर्म में जाता है। तो मॉडम का ही काम है उस डेटा को क्या करना, एनालॉग में कन्वर्ट करना। लेकिन जब दूसरी साइड रिसीवर साइड पहुँचता है तो रिसीवर को तो डेटा जो होता है डिजिटल फॉर्म में चाहिए, लेकिन डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, एनालॉग फॉर्म में आ रहा है। तो वहाँ पे मॉडम का काम होता है उस एनालॉग फॉर्म के डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो वी हैव टू टाइप ऑफ मॉडम, फर्स्ट इज इंटरनल मॉडम एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल मॉडम। जो मेरा इंटरनल मॉडम होता है बेसिकली क्या होता है, पहले हम काफ़ी यूज़ करते थे, अब तो बहुत कम यूज़ करते हैं हम। इंटरनल मॉडम जो होते हैं हमारे पास, सॉरी इंटरनल मॉडम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल मॉडम बहुत कम यूज़ करते हैं हम। बेसिकली मॉडम का कंसेप्ट धीरे धीरे अब मॉडम हम बहुत कम यूज़ करें क्योंकि राउटर आ गए हैं मेरे पास, तो वहीं पे ये सारा काम जो राउटर अपने आप इस चीज़ को मॉडम के काम को हैंडल कर लेता है। वी हैव टू टाइप ऑफ मॉडम, फर्स्ट इज इंटरनल मॉडम एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल मॉडम। Internal modem, a hardware card internal modem are good for general uses as they take a less desk space and do not require power supply and most purpose internal modem work fine। बेसिकली देखिए, जो चीज़ मेरे कंप्यूटर के अंदर लगे वो हमेशा ही अच्छी है। तो इंटरनल मॉडम क्या था, मेरे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता था, मुझे कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल मॉडम क्या है, एक्सटर्नल मॉडम जैसे कीबोर्ड माउस हो गया, इस तरह एक बार डिवाइस आता था मेरे पास जो मुझे कंप्यूटर पे रखना पड़ता था साथ में, और उस डिवाइस को मुझे साथ में रखने के बाद जो है उसको किसी न किसी चीज़ से यूएसबी केबल या सीरियल पोर्ट के साथ क्या करना पड़ता था, अपने कंप्यूटर के साथ जो था कनेक्ट करना पड़ता। हाँ, एक्सटर्नल मॉडम का एक फ़ायदा ये था कि उसे मैं कहीं भी ले जा सकता था, तो मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। सो लाइक ये एक डायग्राम है मेरे पास जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइक देखिए फर्स्ट कंप्यूटर में क्या है, डिजिटल डेटा जो है मॉडम के थ्रू क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल्स में जा रहा है, और दूसरे रिसीवर साइड मॉडम क्या कर रहा है, उस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल डेटा में से कन्वर्ट कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज रिपीटर। अब व्हेन ए सिग्नल ट्रैवल ए नेटवर्क केबल दे लॉस स्ट्रेंथ degrade and because distorted in process that call authentication। A repeater is a device that electrically amplifies the signal it receives and rebroadcasts it. They are used when the total length of network cable exceeds to the standard set for the type of cable being used. A good example of the use of repeater would be local area network using star topology with unshielded twisted pair cable. If the cable is long enough, the finally the make the signal unrecognized by the receiver। बेसिकली रिपीटर का काम क्या होता है कि मेरा सिग्नल जो है उसे रीजनरेट करना, एक जो उसकी स्ट्रेंथ, जैसे एक लंबी केबल में डेटा ट्रैवल कर रहा है ना, तो एक टाइम के बाद क्या होता है सिग्नल जो वीक होने लग पड़ता है। तो रिपीटर का काम है उस सिग्नल को, जो वीक सिग्नल हो रहा है वहाँ से उस सिग्नल को क्या करना, उसने बूस्ट करना या उसकी स्ट्रेंथ क्या करना, इंक्रीज़ कर देना। तो ये चीज़ बेसिकली जब भी हम लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करते हैं ना, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, केबल यूज़ करते हैं हम, ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज़ करते हैं शील्डेड। तो एक लेंथ के बाद क्या होता है, वो जो सिग्नल जो होता है वीक होने लग पड़ता है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रिपीटर को यूज़ करते हैं ताकि मेरा सिग्नल क्या कर जाए,
बूस्ट कर जाए। द नेक्स्ट वन इज ब्रिज। अ ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस that typically link together two different type of LAN. A bridge can join several LAN. However, a bridge can also divide a network to isolate traffic problem. For example, if the volume of the traffic from one or more computer or a single department is flooding the network, the data and slowing the entire network or entire operation, a bridge can isolate those computer or those departments. A bridge is used to connect two segment 1 and segment 2. Each segment can have several computer attached to it. देखिए मैंने जैसे सिंपल से बात की कि दो, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे दो सेगमेंट है मेरे पास, जिसमें मेरे पास क्या है, एक में 3 क्लाइंट है, एक हब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, एक सर्वर है। दूसरा सेगमेंट है मेरे पास जिसमें 3 क्लाइंट है, स्विच लगा हुआ है। तो ब्रिज का काम क्या होता है, इन दो के दो नेटवर्क को क्या करना है, आपस में जोड़ना होता है। बेसिकली यही काम होता है ब्रिज का, जो मेरे क्या करता है, लाइक हमने डेफिनेशन में पढ़ा, अ ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट टिपिकली लिंक टुगेदर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लैन। बेसिकली दो नेटवर्क है मेरे पास, उनको जोड़ने का काम जो किसने करना है, मेरे पास ब्रिज ने करना होता है। द नेक्स्ट वन इज राउटर। अ राउटर ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इट इज सिमिलर टू एन इंटेलिजेंट ब्रिज। राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पाथ टू रीड द मैसेज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ओरिजिन। द राउटर कैन direct traffic to prevent the head of collision and the smart enough to know when to direct traffic along the shortcut. A router can even listen the entire network to determine which section is busiest. Then they can then redirect the data around those sections until they are removed. If you have a LAN that you want to connect the internet, you will need to purchase a router. In this case, the router serves as a translator when the information or your LAN and the network or internet. It is also determine the best route to send data over the network. Basically router का काम क्या होता है ना, जब भी मेरा डेटा ट्रैवल कर रहा है इंटरनेट पे, ही सिलेक्ट द बेस्ट रूट, best and shortcut route to travel the data from source to destination. It is the duty of router to select the best path so our data can be reach a destination easy and effective way without any problem. तो राउटर का यही काम है, बेसिकली मेरा डेटा को क्या करना है, ईजी वे में अपनी डेस्टिनेशन बनाना। लाइक नाम से पता लग रहा है, राउटर मीन रूट। इसका काम ही क्या होता है, रूट सेट करना है, जहाँ से सारा का सारा डेटा क्या करता है, ये पहुँचाता है। लाइक ये देखिए, बेसिकली राउटर जो होगा ज़्यादातर काम क्या करेगा, इंटरनेट के साथ ही जुड़ेगा। बेसिकली राउटर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट के साथ, क्योंकि देखिए अंदर के नेटवर्क को तो मेरे हब वगैरह संभाल लेते हैं, लेकिन जब मुझे अपने नेटवर्क से बाहर निकलना होता है तब मुझे राउटर जो होता है चाहिए। जैसे लेके लैन से डेटा, जो मैं सारा डेटा रखा हूँ उस लैन के डेटा को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, इंटरनेट पे लेके जा रहा हूँ, तब मुझे अपने नेटवर्क से निकलने के लिए जो होता है राउटर चाहिए होगा। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज गेटवे। इफ़ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट you have to enter through the gateway. The gateway connects your smaller network to the internet. A gateway passes information from one network to another network. As your information travel across the network or across the internet, a gateway interconnect network at higher layer than bridge or router. A gateway usually support address mapping from one network to another, or maybe also provide transformation of data between environment to support end-to-end application connectivity. A gateway typically limit the interconnectivity of two networks or subset a protocol support to either one. The main function of gateway is to convert the protocol among communicate. Basically the main काम क्या है इसका, एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करना। अब देखिए मेरा अपना नेटवर्क है, मैं अपने नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क में जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे नेटवर्क में जा रहा हूँ तो उसकी जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है वो हो सकता है अलग होती हूँ, और जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अलग है। तो उस चीज़ को आपस में लिंक बनाए रखना जो है किसका काम होता है, गेटवे का। बेसिकली गेटवे का काम क्या है, जब मैं अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता हूँ तो गेटवे ने उस काम को क्या करना होता है, हैंडल करना होता है। मेनली क्या करना है, एक प्रोटोकॉल को दूसरी प्रोटोकॉल में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। एक प्रोटोकॉल के फॉर्मेट को दूसरी प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना था, ताकि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन इंटरकनेक्टिविटी जो है बनी रहे। सो दीज आर अवर कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेज। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस हब,
switch, bridge, gateway, router, repeater. All these are computer hardware, parts of computer hardware, or in other way we can say that all these are the computer network devices. So this is our last topic of digital computer networking. So in next lecture we start the new topic. So thanks and have a nice day. See you next.